Hello students, today we are going to study the essay The Power of Prayer by APJ Abdul Kalam. Before we move on the text of the essay, let us have a brief introduction of the writer of this essay. And the full name of the writer is Avul Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam. He was born in 1931 in the family of a boat owner at Rameshwaram in Tamil Nadu. He was the recipient of several prestigious awards from the Government of India, including the Padam Bhushan in 1981, the Padam Vibhushan in 1990, and the Bharat Ratna in 1997. He was also a noted author who had penned books like India 2020, A Vision for the New Millennium 1998, Wings of Fire, an autobiography 1999, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India 2002, and A Manifesto for Change, a sequel to India 2020 2014. He was the 11th President of India, serving from 2002 to 2007. He passed away on 27 July 2015 due to a massive cardiac arrest during a lecture at the Indian Institute of Management, Shillong. His work on the development of launch vehicles and ballistic missile technology had earned him the name of the Missile Man of India. इसी पैराग्राफ को अब मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। तो आज हम जो है निबंध जो ऐसे है वो पढ़ने जा रहे हैं, द पावर ऑफ प्रेयर, और ये जो लिखा गया है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और उनका जो पूरा नाम है वो एवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, और 1931 में इनका जो है जन्म एक बोट ऑनर यानी जो नाव रखते हैं उस परिवार में रामेश्वरम में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। और इनको कई जो है बहुत ही सम्मानजनक जो अवार्ड्स मिले हैं भारत सरकार के द्वारा, जिसमें शामिल है 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न अवार्ड जो है इनको मिला है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने कई बुक्स हैं जो लिखी हैं। तो उसमें जो है एक बुक है इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, ये 1998 में लिखी गई बुक है। फिर है इसके बाद विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी जीवनी है और ये 1999 में लिखी गई है। फिर इनकी बुक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये 2002 में लिखी गई। एंड ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज इज इक्वल टू इंडिया 2020, ये 2014 में लिखी गई इनके द्वारा। और ये जो हैं 11वें प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, और 2002 से लेकर 2007 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और 27 जुलाई 2015 को इनकी जो है मृत्यु हुई, एक जो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक की वजह से, जब ये एक लेक्चर दे रहे थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में, उसी दौरान जो है इनकी मृत्यु हुई। और उनका जो कार्य है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, ये कैरियर रॉकेट और बैलिस्टिक यानी एक्साइटिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी जो इनकी है उसके डेवलपमेंट के लिए जो इनका कार्य है उसकी वजह से जो है इनको एक नाम दिया गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इस निबंध के लेखक का। द प्रेजेंट essay has been taken from
Kalam's autobiography, Wings of Fire, 1999. In this part of his autobiography, he describes his childhood, his teachers, parents, and mentors who played a powerful role in shaping and molding his mind, character, and ambitions. In a way, in this essay, he expresses his gratitude for his teachers, parents, and mentors who helped him, who supported him in uh, doing works in his life. Now we move on the text of the essay. The essay is: I was born into a middle class Tamil family in an island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Uh, APJ Abdul Kalam tells about his life. He says that he was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Janaluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Uh, in these lines, APJ Abdul Kalam tells about his father. Uh, his father's name was Janulabdin. He tells about his father that his father had neither much formal education. Uh, Formal education means education in a school, nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate means inner wisdom and a true generosity of spirit. He tells about his father that he had not got opportunity to have formal education, and neither he had wealth, but despite these disadvantages, he possessed great inner wisdom and he was a generous person. He had an ideal helpmate in my mother, Ashyama. Uh, he tells about his mother. He says that his father had an ideal helpmate in his mother, whose name was Ashyama. I do not recall the exact number of people she fed every day. He did not remember. He was not able to remember what was the exact number of people his mother used to feed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. But he was quite certain that far more outsiders ate with them than all the family members of his own family put together. जो पहला जो पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे और एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, तो सबसे पहले बात तो ये कि ये जो निबंध है ये एपीजे अब्दुल कलाम की जो एक आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर, 1999 में जो ये लिखी गई, तो उसमें से लिया गया हिस्सा है जो ये वाला हमारा ऐसे है, द पावर ऑफ प्रेयर। और इसमें जो ये है कि ये अपने बचपन की बात करते हैं और इनके जो टीचर्स का, इनके पेरेंट्स का और इनके जो भी संरक्षक थे जो इनके जीवन में जिन्होंने इनको संभाला, गाइडेंस दी, तो उनको एक तरीके से ये अपना यहाँ पर शुक्रिया करते हैं कि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा इनके दिमाग को विकसित करने में, इनके कैरेक्टर को बनाने में और इनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में। तो एक तरीके से यहाँ पर जो ये अपने गुरुजनों को, माता पिता को और संरक्षकों को धन्यवाद दे रहे हैं। तो अब मैं निबंध पर आती हूँ। तो इसमें जो है पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उन्होंने बताया है कि वो तमिल फैमिली में पैदा हुए और मिडिल क्लास उनकी फैमिली थी
और इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम में, जो कि अर्स्टवाइल मद्रास राज्य में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी हैं उनका नाम जैनुलाब्दीन है, और उनकी कोई स्कूल एजुकेशन नहीं हुई और ना ही उनके पास काफ़ी धन था। लेकिन इन नुकसान के बावजूद, ये नुकसान ये कि एक तो इनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई और ना ही इनके पास धन था। उसके बावजूद जो है उनके अंदर एक अंदरूनी बुद्धि थी और वो काफ़ी उदार स्वभाव के थे। और उनकी मदर में जो है उनके पिताजी को एक आदर्श साथी मिला। उनकी माँ का नाम आशियामा था। और वो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने लोग प्रतिदिन उनके घर में खाना खाया करते थे, यानी उनकी मदर जो है लोगों को खाना खिलाया करती थी। लेकिन वो कहते हैं कि वो उनको, लेकिन ये पूर्ण विश्वास है कि बाहर के लोग उनके घर में ज़्यादा खाना खाते थे तुलना में। अगर उनके सारे घर के मेंबर्स को अगर गिन गिन कर एक रख दिया जाए, यानी सारी गिनती कर दी जाए घर के मेंबर्स की, तो उससे ज़्यादा बाहर के लोग जो है उनके घर में प्रतिदिन प्रतिदिन खाना खाया खाया करते थे। इसमें इन लाइंस में ये बताया गया है कि उनकी माताजी हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए केयरफुल पर्सन थे।